Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine and doing great. Today we are going to start our lecture number 1 of New Oxford Primary Science of Level 3rd. So first of all, open the workbook and science planner. Student, open the page F of your planner and mention date and day on the first point and the point number 3rd of week 1. And we are going to start the unit number 1, the human body, reading explanation of chapter. So open the workbook, textbook, page number 2. Dear student, we are going to start unit number 1, that is the human body. Okay, the human body. In this chapter we will study about human body, its different types, its different parts, that human body is divided into different parts, and their functions as well. So and we will also learn about the different organs of our body and their systems, and we will also learn about the human brain. Okay, I am going to start the reading of unit number 1, so do reading with me. Your body is like a wonderful machine. Okay, machine. So what is machine? Anything that can make you work easier is called machine. So our body, human body work just like a machine. It can do hundreds of different job. हमारी body बहुत से jobs कर सकती है, जैसे walking, running, jumping, sleeping, number of jobs. These jobs are done by different organs and system. और उन्हीं jobs को perform करने के लिए हमारी body के पास क्या है, different organs हैं और systems हैं. The organs and system perform different function, और यही organs और system का क्या different function perform करते हैं, but they all work together, और ये मिलकर काम करते हैं. Okay, students, here you see in this picture, you have to discuss this picture with your family members and then answer this question, that in this picture you see these children, these people are playing football, and you have to tell that which organ and organ systems are these children using, that which of their body part or organ they are using. Okay, body organs they are using to play football. Okay, they are using their muscular system, they are using their skeletal system as well, and they are also using their breathing system. ये सांस भी ले रहे हैं, अपने skeleton को, अपने muscles को use कर रहे हैं. So they are using their respiratory system, they are using their muscular system, and they are also using their skeletal system as well. Come to the next page. On the page number 3rd we have the topic human brain. ह्यूमन ब्रेन, द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का जो ब्रेन होता है वो क्या है, कंट्रोल सेंटर है, हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है. सो इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. इट कंट्रोल ऑल द सिस्टम्स एंड फंक्शन. ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स और ऑर्गन्स. इट कंट्रोल ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम्स और ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. Here in this picture you see the human brain, and we are going to discuss the parts of human brain. First one, cerebrum, then cerebellum and medulla. Okay, so cerebrum is involved in memory and thinking, and the 5 senses, that is taste, smell, touch, sight and hearing. Cerebrum control our muscle control. Medulla control the activities of heart, हमारे heart की activities. stomach, मैदे की activities. मैदे का क्या function है, stomach का डाइजेशन, किडनी की एक्टिविटीज़, ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कौन, मेड्यूला. ओके, दिस पार्ट इज मेड्यूला, देन सेरिब्रम, cerebellum and then cerebrum. Okay, do you know the brain is about 73% of water. हमारा ब्रेन 73% किससे मिलके बना है, वाटर से बना है. This is why it is so important to make sure you drink plenty of water. If you don't, it can affect your ability to pay attention and learn. अब हमारा ब्रेन जो 73% जो कंसिस्ट करता है वो वाटर पर कंसिस्ट करता है, इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें अपने बॉडी में वाटर को बैलेंस रखना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी दिमाग, हमारा ब्रेन जो है प्रॉपरली वर्क कर सके. अगर हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन में इसकी मिकदार सही नहीं होगी तो हम क्या कर सकेंगे, पे अटेंशन, तवज्जो या गौर व फिक्र करने सही नहीं कर सकेंगे. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. द नेक्स्ट topic is the sense organ. Okay, sense organ. Sense means senses
मीन वी हैव 5 सेंसेस। हमें अल्लाह ताला ने कितनी सेंसेस दी हैं? 5 सेंसेस, जिनसे हम अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को देख सकते हैं। और उन सेंसेस को हम किसकी मदद से देख सकते हैं? सेंस ऑर्गन की मदद से। दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। ये क्या करते हैं? हमें अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को सेंस करने में, सोचने समझने में मदद करते हैं। द सेंस ऑर्गन टेक इन इन्फॉर्मेशन। अब सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन लेते हैं, टेक इन इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन। और किससे सेंड कर देते हैं? हमारे ब्रेन को। सो दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट, अपने माहौल से बाखबर रहें। और सेंसेस आर इंपॉर्टेंट। हमारे सेंसेस ज़रूरी हैं। वाई और सेंसेस आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर। ये हमें ख़तरात से बचाते हैं। डू यू नो? वॉट डू यू नो? आई लैशेज़ कीप द आई क्लीन बाय कलेक्टिंग स्मॉल डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब हमारी जो आई लैशेज़ होती हैं, आई लैशेज़, वो क्या, उनका क्या फंक्शन है कि वो हमारी आँखों को, हमारी आइज़ को डस्ट, हमारे जो हवा में डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे महफूज रखती हैं। ओके, उन्हें हमारी आँख के अंदर नहीं जाने देती। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट। और हमारी आँख को सूरज की रोशनी से, तेज़ सूरज की रोशनी से भी प्रोटेक्ट करती हैं, बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर आवर आइज़। सो द फर्स्ट सेंस ऑर्गन वी हैव और आई। ओके, वी हैव 2 आइज़ एंड हम अपनी आंखों से क्या देख सकते हैं? हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, हम अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हैं, हम रंगों को देखते हैं, हम चीज़ों की शेप्स को देखते हैं, हम एक दूसरे को पहचानते हैं। When the eyes see something, जब भी आइज़, हमारी आंखें कुछ देखती हैं, दे सेंड अ मैसेज। वो क्या करती हैं? मैसेज, एक पैगाम भेजती हैं। किसको? टू द ब्रेन को भेजती हैं। द ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर सीइंग। और ब्रेन हमें बताता है कि आहर हम जो चीज़ देख रहे हैं वो क्या है। ओके, अभी आप क्या देख रहे हो? अभी आप कैमरे में क्या देख रहे हो, या अपनी सेल में क्या देख रहे हो? आपको बुक नज़र आ रही है, या आपको कौन बता रहा है? आपका ब्रेन बता रहा है। ओके, ईयर्स we have 2 ears. Okay, the ears receive sound from outside. हमारे कान जो हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट में से साउंड को लेते हैं, then send it to the brain. फिर वही साउंड हमारी ब्रेन की तरफ जाती है, ताकि मैसेज लेके जाते हैं। The sounds are carried to the brain. और वही साउंड कहाँ जाती है? ब्रेन की तरफ जाती है। The brain tells us what is making the sound and where the sound is coming from. और हमारा ब्रेन बताता है कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है और कौन दे रहा है। ओके, और ears enable us to hear. हमारे कान हमें किस में हेल्प करते हैं? hear, सुनने में हेल्प करते हैं। and also help us to keep our balance. और हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में, खड़ा रहने में हेल्प आउट करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? So we have learned 2 sense organ, eyes and ears. Come to the next page. So on the next page, number 4, we have 3 sense organ, that is nose, tongue, skin. Okay, nose. Many things give off smells, scents and odor. अब हमारी जो इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं उनकी स्मेल्स भी होती हैं, बू होती है, अपनी सेंट होती है, अपना एक ऑर्डर होता है। अब उस स्मेल या बू को सूंघने के लिए हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है, दैट इज़ और नोज़। और नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स। ओके, दीज स्मेल ट्रैवल थ्रू द एयर। यही स्मेल, यही जो बू होती है, ये हवा में से गुजर के हमारे नाक तक आती है। द नर्व्स इन द नोज़, हमारे नाक में क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। नर्व्स का क्या काम होता है? मैसेज को सेंड करना। द नर्व्स इन द नोज़ रिसीव दी स्मेल। यही नर्व्स जो हमारे नोज़ में होती हैं वो स्मेल को रिसीव करती हैं, लेती हैं। द ब्रेन फिर देन वो क्या करती हैं? उसी ब्रेन को मैसेज सेंड करती हैं। द ब्रेन टेल्स अस इफ़ द स्मेल आर प्लेजेंट और नॉट। और हमारा ब्रेन हमें बताता है, देन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो स्मेल हम ले रहे हैं, जो भी हमें बू आ रही है, वो प्लेजेंट है या नहीं है। ओके, वो खुशगवार है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज टंग और टंग. Okay, it is present in our mouth and we can taste different food items with the help of our tongue. Okay, the tongue help us to taste things. हमारी टंग के हमें किस में हेल्प आउट करती है? चीज़ों को चखने में हेल्प करती है. ज़बान, द टंग इज़ कवर्ड विद टाइनी पोर्स. अब हमारी ज़बान के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स. अब इन टाइनी पोर्स या इन छोटे छोटे जो पोर्स मीन सुराख जो होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है कि हमें किस में हेल्प आउट करती हैं? छोटी छोटी ये जो पोर्स हैं हमें किस में हेल्प आउट करते हैं? हमें चीज़ों को चखने में हेल्प करते हैं. वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट. और इन्हीं की मदद से हम क्या बता सकते हैं कि हम भी जो भी चीज़ खा रहे हैं वो स्वीट है, मीठी है.
सोर खट्टी है, बिटर कड़वी है, साल्टी नमकीन है या हॉट है। ओके, द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक, और हमारी ज़ुबान, हमारी टंग हमें किस में भी हेल्प करती है, बोलने में भी हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट आ जाता है स्किन, नेक्स्ट टॉपिक स्किन। अब स्किन क्या है, स्किन की मदद से हम चीज़ों को छू सकते हैं और बता सकते हैं कि हम जिस चीज़ को छू रहे हैं, फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो गर्म है, ठंडी है, सख्त है या नरम है। ओके, सो ये किस तरह करते हैं हम कि हमारी जो स्किन होती है अंडर द स्किन सरफेस, हमारी स्किन की बिल्कुल नीचे क्या होती हैं, नर्व्स एंडिंग होती हैं, नर्व्स होती हैं, नर्व्स की एंडिंग होती हैं। अब नर्व्स का क्या काम है कि वो मैसेज को सेंड करती हैं टू द ब्रेन, सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हम जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं, छू रहे हैं, वो क्या है, वो उसका टेक्सचर या वो किस टाइप का मटेरियल है। द स्किन हेल्प अस टू फील, हमारी स्किन हमें किस में हेल्प आउट करती है, फील करने में, महसूस करने में हेल्प करती है। जस्ट अंडर द स्किन सरफेस ऑफ स्किन, हमारी स्किन की सरफेस के बिल्कुल नीचे, और द नर्व्स ऑफ एंड्स ऑफ नर्व्स, क्या है, नर्व्स की एंड्स हैं। वैन वी टच समथिंग, हम जब भी किसी चीज़ को छूते हैं, द नर्व एंडिंग्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन, यही नर्व्स एंडिंग क्या करती हैं, ब्रेन को मैसेज सेंड करती हैं। वी कैन फील, और हम महसूस कर सकते हैं, हीट गर्मी को, कोल्ड को, pressure and pain. Okay, we can feel if something is hard or soft. Okay, you can feel from your skin that if something is hard or soft. So हमारी स्किन किस में इन्वॉल्व होती हैं, हम क्या क्या फील कर सकते हैं अपनी स्किन की मदद से, वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर, पेन, हार्ड और सॉफ्ट थिंग्स। ओके, सो here next we have concept check. If you understand all these sense organs, then you would easily solve these questions. So this is a home assignment for you. Come to the next page, dear student. On the page number 5, we have the systems of the body. Okay, we have learned about 5 sense organ. Then we are going to study about the systems of our body. The organs and the other parts of the body form different system. अब हमारी बॉडी के organs और different parts मिलके क्या बनाते हैं, system बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, फर्स्ट वन स्केलेटल सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम किससे मिलके बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बोन से मिलके बनता है। बोन्स आपस में मिलती हैं, कनेक्ट करती हैं, ज्वाइन करती हैं और वो एक सिस्टम बनाती हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। अब ह्यूमन बॉडी के पास एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन है, बोन्स आपस में मिलकर एक फ्रेम बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटन। अब हमारी बॉडी की बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, मिलके स्केलेटन हमारा ढांचा बनाती हैं। द बोन्स गिव द बॉडी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, और यही बोन्स हमें एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, एक फ्रेम देती हैं, हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देती हैं, और ये स्केलेटन मजबूत भी होता है। दे सपोर्ट द बॉडी, और हमारी स्केलेटन का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट इनसाइड, और हमारी बॉडी के जो इनसाइड, स्केलेटन के जो इनसाइड पार्ट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप स्कल को ले लें, स्कल हमारी खोपड़ी किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी ब्रेन, दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। देन रिब केज, ribs, this it protect or internal organ, for example heart, you see, or this is a skeletal system of human. This is skull, jawbone, upper arm bone, lower arm bone. So lower arm bone, finger bone, heel, toe bone, kneecap, thigh bone, hip bone. This is spine and it support our body. Ribs, it protect our internal organs. This is skull. Okay, the next we have मस्कुलर सिस्टम। ओके, मस्कुलर सिस्टम किससे मिलके बनता है, मसल से मिलके बनता है। ओके, द मसल्स मेकअप द मस्कुलर सिस्टम, हमारे मसल्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम वर्क क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम, और हमारा मस्कुलर सिस्टम किसके साथ मिलके वर्क करता है, स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। एंड फॉर्म पार्ट्स ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क, और हमारी बॉडी को एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है। यू सी, दिस इज अ स्केलेटल सिस्टम and this is muscular system, and these two systems work closely with each other and form complete framework of our body. Muscles allow us to move, और हमारे muscles की वजह से ही हम क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, हम अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पेज।
So on the next page number 6, students, we have two system of our body, that is the digestive system and circulatory system. digestive system हमारी बॉडी का हाजमे का निज़ाम होता है कि हम फूड को लेते हैं और वो डाइजेस्ट मीन हजम होता है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम किस पर, अब हम फूड को इंटेक करते हैं, लेते हैं इन किस तरह माउथ से, देन इट इंटर इनटू आवर फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में, देन इट through channels large intestine and small intestine, and then the waste product is excreted out through our body through anus. Okay, जो waste product होता है वो हमारे anus से excrete out हो जाता है, और large intestine और small intestine हमारे waste channels हैं. Okay, the stomach and the channels through which food passes are called digestive system. हमारा stomach, हमारा मैदा और जो ये channels हैं large intestine और small intestine मिलके क्या बनाते हैं, digestive system बनाते हैं. Starting from the mouth से start होता है, हम लेते हैं. This system include the stomach पे consist करता है, liver, channels which food passes through, इन तमाम रास्तों से हमारा फूड गुजर के जाता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन. माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. द नेक्स्ट सिस्टम वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, हार्ट. और हार्ट की मदद से जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ब्लड इज पम्प्ड बाय हार्ट. अब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज. अब ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है किसके ज़रिए, वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए. यू सी दैट दीज ब्लू पाइप्स आर ट्यूब्स आर वेन्स एंड द रेड tubes are arteries. Okay, these along with the heart, और arteries और vein heart के साथ मिल के काम करके मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा एक सिस्टम बनाती हैं, क्या कहते हैं उसे, सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स पर मेन कंसिस्ट करता है. फर्स्ट वन इज़ हार्ट हमारे क्या करता है, ब्लड को पंप करता है. देन आर्टरीज और वेन का फंक्शन है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? So the next system we have the respiratory system. Okay, this is a breathing system of humans. You see that the respiratory system of human consists of nose, the air enter into our nose, then enter into our windpipe, then the air goes into our 2 lungs. These are the 2 lungs, left lung and right lungs, and the lungs absorb oxygen. The respiratory system consists of the nose. Respiratory system किस पे consist कर रहा है, nose पर, windpipe and lungs. Understand? 3 parts: nose, windpipe and lungs. Air is pulled into and pushed out of the body by this system. और हवा जो होती है हमारी बॉडी के अंदर भी आती है और बाहर भी जाती है. किसके, इसी सिस्टम के ज़रिए हवा हमारी बॉडी के अंदर भी दाखिल होती है और बाहर भी चली जाती है. इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. अब लंग्स के अंदर क्या होता है, जब हमारी हवा विंड पाइप से होकर लंग्स में जाती है तो लंग्स का क्या करते हैं, लंग्स जो है हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 7. वी हैव डू यू नो, if the lungs were open flat they would cover the entire area of tennis court. Understand student? The next we have topic the nervous system and excretory system. Okay, अब nervous system क्या है, nervous system में कौन कौन कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीज़, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. the brain and the nerves form the nervous system. हमारी ब्रेन और नर्व्स मिलके क्या बनाती हैं, नर्वस सिस्टम बनाती हैं. ओके, अब ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन हमारे बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन हमारी दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं वो क्या है, नर्व्स लेके जाती हैं. द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम. ओके, द नर्व्स इन द बॉडी, the nerves in the body
रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। और ये अब हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। वो क्या करती हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा, आइज, नोज, स्किन, उनसे मैसेज को रिसीव करती हैं। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन, और फिर वो वही मैसेज लेके ब्रेन को सेंड करती हैं। और ब्रेन हमारी उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ओके, कि हम क्या सूंघ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, या हम किस चीज़ को फील कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी मीन कि हमारी बॉडी में जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, वेस्ट है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं, वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर जाते हैं, वो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। हम अपनी बॉडी के जितने भी गैर ज़रूरी जो मवाद हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए। द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर। जैसे हम लंग्स को लेते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर हवा जाती है, जो वेस्ट एयर होती है उसको बाहर को निकालता है लंग्स, निकालते हैं। द किडनी गेट रिड ऑफ यूरिन। अब किडनी क्या करती है? यूरिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। एंड द स्किन गेट रिड ऑफ स्वेट। स्वेट मीन पसीना। अब स्किन क्या करती है? हमारी पसीना जो होता है, जो मिनरल्स और वाटर जो होता है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा, उसको स्किन के ज़रिए स्वेट आउट कर देती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? द नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट चेक। ओके स्टूडेंट, students, here we have a concept check. You have learned about different systems of our body. So here the definition of different systems are given here, and you have to match the definition with the correct one. Okay, column A and column B. So we start from column B and then match it to the column A. Carries food through the stomach and other channel. वो कौन सा सिस्टम है जो जिसके ज़रिए स्टमक और दूसरे चैनल में से फूड गुजरता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, देन वर्क क्लोजली विथ स्केलेटल सिस्टम टू अलाउज अस टू मूव। वो कौन सा सिस्टम है जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। दैट सिस्टम इज मस्कुलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट गिव द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ इट। हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक फ्रेम देता है, शेप देता है। वो कौन सा सिस्टम है? हमारी बोन्स मिलके वो सिस्टम बनाती हैं। एंड दैट सिस्टम इज स्केलेटल सिस्टम। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इट्स टू इजी। हमारी बॉडी को कंट्रोल सेंटर कौन सा है? दैट सिस्टम इज ब्रेन। Dear student, here are unit number 1 from textbook reading is completed. So you have to revise all the topics that we learned today. I hope that you would understand all the topic that we learned today. See you in the next lecture with a new lesson. Till then, Allah Hafiz, fi amanillah.